स्वराज्य आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नज़र भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। This is Subhash Chandra Bose speaking to you from Tokyo. Countrymen and friends, in April last, you heard my voice over another radio in another part of the world. Now I am in Tokyo, and I am accepting the hospitality of the broadcasting station here in order to speak to you again. Since I spoke to you last, no important change has taken place in the general war situation. In the Western theater, the Anglo-American forces have scored a success, and the fighting in North Africa has come to an end. The Anglo-Americans have followed this up by occupying a few small barren islands in the Mediterranean. As is customary with Anglo-American propagandists, they have been rending the skies with their boasting and bragging subsequent to the small military success which they achieved. Prior to this, they had been feeling so down and out that they had badly needed some occasion for bolstering up the sinking morale of their people. If one were to listen to the broadcasts from England and America after the campaign in Tunisia, as I have been doing, one would think that the Anglo-American forces had already won the war. This type of propaganda had brought good results during the last World War, when radio broadcasting was virtually unknown. That is why the Anglo-Americans have been indulging in it again. They are, however, blissfully oblivious of the fact that the world public is not as unsophisticated today as it was in 1915 and in 1916. And that radio broadcasting has now enabled people in every corner of the globe to listen to both versions of the story on every point. Moreover, the Indian public, having been repeatedly deceived by cunning British propaganda, has now become exceedingly cautious and is not likely to be influenced at all by one-sided enemy propaganda. I have therefore no doubt in my mind that so far as my countrymen are concerned, they will never be duped by what London or New York or Boston might say. After the Anglo-American occupation of some small barren islands in the Mediterranean, like Pantelleria and Lampedusa, enemy propagandists have given the whole world the impression that the landing in and occupation of the European continent is now a question of a few days. When I was in Paris, soon after the first Anglo-American landing
in French North Africa, I heard from many Parisians that Anglo-American radio stations had given them the impression that Anglo-American troops would be in Paris in a fortnight's time. Those Frenchmen who were elated over this news naturally suffered a severe disappointment when the Anglo-Americans did not appear in France again after the shameful debacle at Dieppe. I am afraid that all those people who have still been hoping for the miracle of an Anglo-American victory will have painful disappointment in store for them when they realize that the occupation of the European continent is still as remote as the occupation of the moon. Friends, you will certainly remember that when the campaign in Africa was going on, I repeatedly told you that for the ultimate outcome of the war, the African campaign did not play an important role, though it was fully utilized by the Anglo-Americans for their propagandistic purposes. You will now realize that what I then said was no exaggeration. The campaign in Africa has ended, but we have not come any nearer to the end of the war than when fighting was going on in Cyrenaica or Tripolitana or Tunisia. The fact is, as I told you before more than once, that the fate of the war depends on the situation in Europe, in Asia, and on the high seas. And so far as India is concerned, what is most important of all is the situation near India. No amount of Anglo-American propaganda can either ignore or hide the fact that after achieving brilliant victories in Hong Kong, in the Philippines, in the East Indies, in Malaya and Singapore, and in Burma, the forces of the Imperial Japanese Army now stand on the frontier of India. During the whole history of British rule in India, it had never struck one single British general that at some time in future, some enemy of Britain may appear on the eastern frontier of India. The whole attention of Britain's military strategists had therefore been concentrated on the northwestern frontier of India. And with the naval fortress of Singapore in their possession, our rulers thought that India was eternally safe in their hands. But the phenomenal advance of Generals Yamashita and Iida created history and opened the eyes of the world to the worthlessness of British strategy. Since then, General Wavell has been making feverish attempts to put up fortifications on the eastern frontier of India. But what the Indian people today are asking is this: if it took 20 years to build Singapore and only 1 week to lose it, how long will it take the ever-retreating British Commander-in-Chief or his successor to withdraw from his eastern fortifications? We have seen that during the course of the present war, the Anglo-American powers have time and again made themselves the laughingstock of the world by beginning a military campaign to the accompaniment of boastful propaganda and extravagant claims. They are now doing this in connection with their contemplated occupation of the European continent. They did it some months ago when General Wavell started operations on the Indo-Burma frontier and marched into Burma. At that time, it was advertised all over the world that the campaign for the reconquest of Burma had begun. But what face could the British Commander-in-Chief show when his troops had to run back to India, leaving all their bags and baggage behind as soon as the powerful Japanese army began its counter-offensive? General Wavell has subsequently invented all kinds of excuses in order to cover his defeat. Even the British Prime Minister, during his recent visit to America, was at pains
to explain away the ignominious failure of his commander-in-chief to retake Burma. But what one cannot understand is as to why the Anglo-American powers repeatedly indulge in premature bragging. In contrast to them, the Axis powers talk less, and instead of beginning a military campaign with bumptious propaganda, they let actual events speak for themselves. When the German forces occupied the Channel Islands, which lie between the French and the English coast, in 1940, German propaganda never gave the impression that through the occupation of these islands, the German army had come nearer to an invasion of England. If, as Anglo-American propaganda is now trying to make out, the occupation of Pantelleria has made landing in and occupation of Sicily a reasonable certainty, why could not the Anglo-American forces make that attempt when the island fortress of Malta, which is as near Sicily as Pantelleria, has been always in their possession? No, friends. The fact is that the Anglo-American powers are in such a hopeless situation that they have somehow to bolster up the sinking morale of their people. And in order to do that, they feel constrained to resort to premature boasting again and again. Such tactics may be a necessity for their propaganda, but that is no reason why the world public, which is now wide awake, should be duped by them. For India, what is of primary importance is not what is happening in Phoenix and Timbuktu or in Nantadeeka and Alaska, but what is happening inside India and across our frontier. What is of primary importance to us is that the much advertised reconquest of Burma has ended in a painful retreat. That the victorious Japanese army is standing on our eastern frontier. That the government of Japan, through its worthy Prime Minister, General Tojo, has repeatedly declared its fullest support to Indian independence and its firm resolve to see Anglo-American power and influence expelled from India. And lastly, that Japan's Prime Minister has offered active assistance to the Indian revolutionaries needed in their struggle for complete national independence. What is also of direct importance to India is the policy of British imperialism toward our country. You know as well as I do that when this war broke out, some of our friends thought that since the British government would soon find itself in serious difficulty, it would feel constrained to sue for peace with the party that controlled the cabinet in 8 out of 11 provinces in British India. According to these friends, all that the Congress had to do was to hold itself in patience till the British government felt compelled to make the first advance. A year rolled by, but there was no evidence of a change of heart on the British side. Then these friends considered it necessary to exert mild pressure on the British government in order to bring about a compromise. Necessary steps were taken in this behalf, but no tangible result followed. Even the fall of Singapore, the greatest disaster in British military history, according to Mr. Winston Churchill, and the loss of Burma did not bring about any appreciable change. British imperialism remains inexorable. Men may come and men may go. Empires may come and empires may go. But British imperialism goes on forever. That is what our rulers continue to think. You may call this lack of statesmanship, or political bankruptcy, or midsummer madness. But this midsummer madness has its own explanation. The British Empire has grown out of India. The British people, no matter to which political party they belong, have grown fat on the spoils, the wealth, and the resources of India. To them, this empire today means India. They are now fighting
in order to preserve that empire. If they are to win the war at the cost of recognizing India's independence, it will amount to winning the war by losing the empire. Consequently, no matter what fate overtakes Britain during the course of this war, the average Englishman will endeavor till the very last to hold on to his empire, that is, to hold on to India. Therefore, if I were to speak frankly, I should say that it is not midsummer madness that British politicians refuse to recognize India's independence, though they are in a terrible plight. It is midsummer madness that we should expect the Englishman to voluntarily give up his empire simply because he has fallen on evil days. There is another factor that accounts for the unrelenting policy of British imperialists. As the Foreign Minister of Germany said the other day in his inimitable style, the British Empire has been losing one part of its territory to its enemies and another part of it to its friends during the course of the present war. Moreover, in his frantic effort to maintain his empire, John Bull is now bleeding himself white. The only hope of even partially making up for this colossal loss is to exploit India more ruthlessly when the war is over. Therefore, according to imperialistic logic, the worse England's position becomes during this war, the more necessary will it be to retain a firm grip over India. British imperialism will ultimately break, but it will never bend. That is how empires have always behaved in the history of mankind. Consequently, no Indian should ever cherish the illusion that one day England will be induced to recognize India's independence. But that is not to say that British politicians will never again attempt a compromise with India. Another attempt at a compromise may be made at any time, whether under the pressure of a worsening military situation or in order to placate the liberal elements in England and America. Personally, I expect another such attempt sometime this year. But what I want to point out most emphatically is that in attempting a compromise, British politicians will never recognize India's independence, but will only try to bluff the Indian people, and through protracted negotiations will only try to sidetrack the campaign for independence and thereby undermine the national will, as they did between December 1941 and July 1942. The negotiations carried on by Sir Stafford Cripps in India last year did not harm the British government in any way. It only interrupted our struggle for freedom. Therefore, we should once for all set our face against any compromise with British imperialism. Friends, independence admits of no compromise. Freedom has only one connotation, namely that the British and their allies must quit India for good. And those who really want liberty must fight for it and pay for it with their own blood. Countrymen and friends, let us therefore carry on the fight for liberty inside India and outside India with all our strength and vigor. Let us continue the battle with resolute heart and with unshakable faith till one day, under the combined attack of our friends and allies and of ourselves, Anglo-American imperialism will be overthrown. The British Empire will be broken up, and out of its ashes, India will once again emerge as an independent nation. In this struggle, there is no going back, and there can be no faltering. We must march forward and forward till victory is achieved and freedom won. Inqilab Zindabad. Azad Hind Zindabad.
You have just been listening to Subhash Chandra Bose from Radio Tokyo. आज से 40 बरस पहले की बात मुझे याद आती है, जब हम नौजवान थे। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग एक है। वॉलेंटियर और सिपाही के नाते हम कहा करते थे कि ये जिस दिन आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग लाल है। किले पर हम आज़ादी का झंडा फहराएंगे, उस दिन ही हमारी आज़ादी पक्की होगी। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की हमने ये भावना उस अपने बहादुर नेता से पाई थी, जिसका नाम ये हम कभी आकाशवाणी भूल नहीं ध्वनि सकते। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। जवाहरलाल जी हमारी देश की आज़ादी के बड़े से बड़े ये आकाशवाणी ध्वनि सिपह संग्रहालय सालारों की में रिकॉर्डिंग थे है। और आज़ादी के आने के बाद उन्होंने देश ये के बनाने का आकाशवाणी काम ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। अपने हाथ में उठाया। देश के वो कर्णधार बने और ये आकाशवाणी 17 ध्वनि साल संग्रहालय तक की रिकॉर्डिंग है। लगातार दिन और रात एक कर उन्होंने ये आज़ादी को आकाशवाणी ध्वनि संजोया संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। और उसको मजबूत बनाया। हमें याद है कि 15 अगस्त ये आकाशवाणी सन ध्वनि संग्रहालय 47 की को रिकॉर्डिंग है। इस देश में क्या जोश था, क्या उमंग था, और ये ऐसा लगता आकाशवाणी था ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। कि जैसे अपनी खोई हुई निधि, अपनी खोई हुई पूंजी हमने हासिल की है और हमने ये आकाशवाणी अपने ध्वनि दिल से संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। अपनी आज़ादी की पूंजी को लगा लिया। 17 साल तक या ये 16 साल आकाशवाणी तक ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। आपने लगातार इस जगह से एक वो सुंदर और स्वस्थ प्रतिमा देखी थी, ये जो आकाशवाणी जवाहरलाल ध्वनि जी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। प्रतिमा थी। इस जगह पर जिस साहस और हिम्मत से ये वो खड़े आकाशवाणी होते थे, ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। जिस तरह देश का मार्गदर्शन करते थे, उसे भूलना कठिन है। ये आकाशवाणी हमने ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। कुछ ऐसा उनको अपने आँखों में और अपने दिलों में बसा लिया था कि हम समझते नहीं ये थे आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की कि रिकॉर्डिंग उनसे है। हमें कभी अलग होना पड़ेगा। लेकिन एक अजीब शक्ति दुनिया में काम करती है, ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की जिस शक्ति रिकॉर्डिंग है। पर
जिस ताकत पर हमारा काबू नहीं है, और आज वो हमारे बीच में यहाँ नहीं है। ये आकाशवाणी आज ध्वनि उनकी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। गंभीर आवाज और हमको और आपको आगे ले जाने वाली आवाज मौन है, लेकिन ये वो देश के आकाशवाणी लिए ध्वनि इतना कर संग्रहालय गए, की रिकॉर्डिंग है। हमारे लिए इतना छोड़ गए कि एक ऐसी बड़ी पूंजी और ख्याति हमें मिली है, तो हमें ये बड़ी आकाशवाणी जिम्मेदारी ध्वनि से निभाना संग्रहालय है। की रिकॉर्डिंग हमने है। कुछ ऐसा उनको अपने आंखों में और अब बसा लिया था कि हम समझते ये नहीं थे आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग कि है। उनसे हमें कभी अलग होना पड़ेगा, लेकिन एक अजीब शक्ति दुनिया में काम करती ये है, आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। जिस शक्ति पर, जिस ताकत पर हमारा काबू नहीं है, और आज वो हमारे बीच में यहाँ नहीं है। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय आज की उनकी रिकॉर्डिंग है। गंभीर आवाज और हमको और आपको आगे ले जाने वाली आवाज मौन है, लेकिन ये आकाशवाणी वो ध्वनि देश के संग्रहालय की लिए इतना रिकॉर्डिंग कर है। गए, हमारे लिए इतना छोड़ गए कि एक ऐसी बड़ी पूंजी और ख्याति हमें मिली है, जिसको ये हमें आकाशवाणी ध्वनि बड़ी संग्रहालय की जिम्मेदारी से रिकॉर्डिंग है। निभाना है। ये आज इस तरह जो वर्षा हुई है, एक मानी में ये आकाशवाणी ये ध्वनि वर्षा और ये संग्रहालय की पानी रिकॉर्डिंग है। देश के लिए भलाई के लिए है, और इससे देश का भला होगा, ये लेकिन आकाशवाणी ध्वनि इसके संग्रहालय की पीछे रिकॉर्डिंग है। हमें ये भी देखना है कि हमें कठिनाइयों और मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर हमने ये समझा आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की कि रिकॉर्डिंग है। देश के बनाने का काम एक सहल काम है, एक सीधा सादा काम है, हम एक साफ रास्ते पर चलते चले जाएंगे, आकाशवाणी ध्वनि तो ये बड़ी संग्रहालय की भूल होगी। रिकॉर्डिंग है। और हमें ये अनुभव करना है कि जिस तरह से आज इस वर्षा ने, इस पानी ने थोड़ी हमारे रास्ते में रुकावट डाली, संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। उसी तरह से कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन जब उन पर हम जीत पाएंगे, ये तब आकाशवाणी ध्वनि फिर अपने संग्रहालय की देश में रिकॉर्डिंग है। हमें सुख और समृद्धि का दृश्य देखने को मिलेगा। हमें याद रखना है कि हम आज आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय बहुत की से रिकॉर्डिंग है। सवालों से बंधे हुए हैं, और हमारी मुश्किलें और कठिनाइयां कम नहीं हैं। अभी अभी आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय एक की महीने, रिकॉर्डिंग है। 1.5 महीने से खाने का सवाल, अन्न का सवाल कठिन बन गया है। खास तौर से आकाशवाणी कुछ ध्वनि सूबों में संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। जो आपके पड़ोस में हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, और उधर पश्चिम की तरफ जाएं आकाशवाणी तो ध्वनि महाराष्ट्र संग्रहालय की रिकॉर्डिंग और है। गुजरात और एक हिस्सा राजस्थान का। यहाँ अन्न का संकट आया, अन्न की कमी आई, आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की लेकिन रिकॉर्डिंग है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हमने उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश की है। ये आकाशवाणी केवल हम ध्वनि बाहर के संग्रहालय की अनाज से रिकॉर्डिंग नहीं, है।
बल्कि अपने देश के उन सूबों से जैसे पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये आकाशवाणी जहाँ ध्वनि के संग्रहालय की रिकॉर्डिंग मध्य है। प्रदेश, जहाँ अन्न कुछ ज़रूरत से, वहाँ की ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होता है, वहाँ से अनाज हमने जल्दी जल्दी ये भेजकर आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की उत्तर रिकॉर्डिंग है। प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात पहुँचाया है। मैं ये तो नहीं कहता कि कुछ कठिनाई आकाशवाणी हट ध्वनि गई है, संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। लेकिन इतना कहने की हिम्मत जरूर रखता हूँ कि जिन्होंने 20 दिन पहले या 1 महीने पहले ये इन आकाशवाणी सूबों को ध्वनि देखा संग्रहालय होगा, की रिकॉर्डिंग है। आज वो पाएंगे वहाँ जाने पर कि वो परेशानी और वो बेचैनी आज नहीं है। इस तरह ये आकाशवाणी हमें ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग कोशिश है। करनी पड़ेगी कि हम अगले महीने 2 महीनों में खास तौर पर जतन और इंतजाम करें, ये आकाशवाणी ध्वनि जिसके संग्रहालय की पास रिकॉर्डिंग है। जितना है उससे वो ज़्यादा खर्च न करे, हम अपने खर्चे को भी घटा सकें, अन्न के खर्चे को तो उसे भी घटाएं। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। मैं चाहता हूँ कि हर एक शहर का रहने वाला, हर एक गांव का रहने वाला अपने पड़ोसी को देखे, संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। कहाँ मुसीबत है, कौन तकलीफ उठा रहा है, और अगर हमें अपने खाने में कुछ कमी करके भी ये दूसरे को ध्वनि खिलाना संग्रहालय पड़े की रिकॉर्डिंग है। तो उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। घबराकर अपने अपने घरों में हम कुछ ज़्यादा रख लें, ये बात मुनासिब ये नहीं है। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की और रिकॉर्डिंग है। मुझे विश्वास है कि जो आज एक स्थिति आई है, जो आज एक हमें टेढ़े आकाशवाणी ध्वनि मौके का मुकाबला करना है, उसमें हम इस हिम्मत, इस बहादुरी और इस दूरंदेशी से काम लेंगे जिसमें देश का ये सवाल कठिन न बने। मैं ये समझता हूँ कि आज के ज़माने में अगले 2-3 महीनों में न दावतों की ज़रूरत है, न डिनर्स की ज़रूरत है, न लंचेस की ज़रूरत है। मेरा मतलब व्यक्तिगत नहीं, जो ये बड़ी बड़ी दावतें या छोटी मोटी दावतें होती हैं, उन्हें हमें बंद करना होगा। मिनिस्टर्स भी न कोई दावत मंजूर करेंगे, न कहीं जाएंगे, न कोई दावत लेंगे और न कोई पार्टीज होंगी। मैं जानता हूँ कि इससे कोई बहुत बचत की बात नहीं, लेकिन आज देश का एक मानस तैयार करना है, देश का दिमाग तैयार करना है, और हमें ये दिखलाना होगा कि जो आज कमियां हैं, उन कमियों को अगर उसमें हम भी कुछ अपने को उसमें लगा सकें तो उससे एक देश को एक मार्ग मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। ये असली सवाल तो ये है कि हम अपने देश में ज़्यादा अनाज पैदा करें, और मैं उसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने जो कदम उठाने का इरादा किया है, हम जिस तरह से किसानों के अनाज की कीमत को बढ़ाना चाहते हैं, हम जिस तरह किसानों को बगैर मुसीबत पहुंचाए सरकार उनसे अनाज खरीदना चाहती है, और हम जो दूसरे और बातें दूसरी करना चाहते हैं, मुझे विश्वास है
कि अगले बरस 2 बरस के अंदर हम अपनी ऐसी हालत बना सकेंगे कि जिसमें आज जैसी स्थिति का हमें मुकाबला करना न पड़े। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अन्न तमाम अनाज पैदा होगा अच्छा खाद देने से, पूरी तरह से पानी देने से, आकाशवाणी ध्वनि या किसानों को कर्जा देने से, या अच्छा बीज और अच्छे जानवरों के कारण। लेकिन असली ताकत दिलों में रहती है, मनों में रहती है। आज का करोड़ों किसान आकाशवाणी अगर ये इरादा कर ले कि हम एक आंदोलन के रूप में खेती की पैदावार को बढ़ाएंगे तो समय बदल सकता है, हालत बदल सकती है। आकाशवाणी कुछ ध्वनि हमें संग्रहालय की गांधी जी की उस भावना को अपनाना होगा। जब हम आंदोलन चलाते थे, गांव-गांव में जाते थे, और आज इस बात की जरूरत है ध्वनि संग्रहालय कि हम गांव में जाएं, हम खेत खेत पर जाएं, हम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी उठाएं कि एक देश के अंदर, गांव के अंदर किसानों में ज्यादा से ज्यादा पैदा करने का एक आंदोलन चला देंगे। मैं चाहता हूं कि हम सब आज उस भावना से प्रेरित हों। और भी दूसरे सवाल हैं। मैं किसी चीज को आपसे छिपाकर और दबाकर नहीं रखना चाहता। आज कीमतें बढ़ रही हैं, मूल्य बढ़ा हुआ है, जरूरी सामान भी ज्यादा कीमत पर मिलते हैं। कपड़ा है, तेल है, चीनी है, गुड़ है या सिलाई है, छोटी मोटी ऐसी चीजें जो रोज की हमारी जिंदगी की चीजें हैं, उनका भी दाम बढ़ा हुआ है ये आकाशवाणी और उसका असर किसान पर भी पड़ता है। लेकिन उस पर भी, उनके लिए भी हमें रोक लगानी होगी। वैसे कीमतों का बढ़ना हमें देखना पड़ेगा, उसके पीछे कुछ मौलिक बातें हैं। कुछ हमारे क्या आर्थिक पॉलिसी और नीति है, उस पर भी वो बात निर्भर करती है। ये आकाशवाणी ध्वनि आज हमने पिछले 15 साल के अंदर 3 प्लान में 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया है और खर्च करने का इरादा रखते हैं। 20,000 करोड़ से ज्यादा। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग क्या कभी हम कल्पना भी कर सकते थे कि इस देश में हम 10-12 बरस के अंदर 17-18 हजार करोड़ रुपया खर्च कर लेंगे? ये आकाशवाणी ध्वनि और संग्रहालय की लेकिन जब हम रुपया इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो उसी के अनुसार हमको पैदा भी करना चाहिए। अगर रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ध्वनि संग्रहालय की हमारी पैदावार न बढ़े तो फिर ये नोट जो बड़ी मात्रा में फैलते हैं, उससे एक इन्फ्लेशन पैदा होता है, उससे कीमतें बढ़ती हैं। ये और आज ध्वनि एक ऐसा अवसर और समय है जब हमें सोचना पड़ेगा कि इन कीमतों के बढ़ती हुई जो हालत है, उस पर काबू पाने के लिए हम क्या कदम उठाएं। इसमें कोई पीछे हटने की बात नहीं, लेकिन मजबूत कदम उठाने की बात है। हमारा लक्ष्य एक ही है, हम वहीं पहुंचेंगे, एक नया समाज बनाने के लिए। एक क्रांतिकारी समाज हमें बनाना है, लेकिन हर कदम हमारा सोचा हुआ, समझा हुआ और एक मजबूती के साथ पढ़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज जो एक हमारी साधारण आर्थिक स्थिति है, हम उसे अच्छी तरह से, सरकार उसे अच्छी तरह से सोचेगी और हम एक रास्ता निकालेंगे जिस रास्ते से हम ठीक ठीक आगे बढ़ सकें और जो आज बढ़ती हुई कीमतें हैं, उस पर कुछ काबू पा सकें। मैं देखना चाहता हूँ अपने देश में और अगले कुछ सालों के अंदर कि कीमतें बंधी हुई हों जरूरी सामान का, जो ज्यादा
बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, उन पर जो जितना पैसा खर्च करना चाहे करे और जो कीमत रहे वो रहे। लेकिन मुझे तो इस बात की चिंता है कि आज गरीब आदमी, आज कॉमन मैन, आज साधारण आदमी खा सके, पहन सके, रह सके और साथ ही साथ उसको ऐसी ज़रूरी चीज़ें जिनका थोड़ा मैंने जिक्र किया उसको मिल सकें और उनकी कीमतें बंधी रहें। एक एक दुकान पर प्राइस, कीमत की लिस्ट और सूची टंगी रहे और ये सरकारी अफसरों का काम होगा कि वो देखें कि वो कीमतें पूरी होती हैं और उनके अनुसार काम चलता है। वैसे अपने देश में हमें अपने पड़ोसी देशों की पहले फिक्र करना है और हम चाहते हैं कि अपने जितनी हम अपने देश में शांति रख सकें और उसके वजह से दुनिया में भी शांति बनाए रखें, वो एक बहुत ही ज़रूरी बात है। चीन का हमला हमारे देश पर हुआ, उसका रुख नहीं बदला है। हम भी अपना रुख नहीं बदल सकते और हम चाहते हैं इज्जत और सम्मान के साथ बातचीत करने से हम कभी हमारा देश पीछे नहीं हटा। क्या गांधी जी और क्या जवाहरलाल जी हमारा ये तरीका रहा कि चाहे हमारा कितना ही विरोधी और मुखालिफ क्यों न हो, अगर वो बात करना चाहे तो हम शान और मर्यादा के साथ बात करने को तैयार हैं। लेकिन अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। और हमारी करोड़ों की ताकत, हमारे जनता की ताकत इतनी जबरदस्त है कि जिससे हम किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी अभी प्रेसिडेंट अयूब ने एक बड़ी अच्छी भावनाओं का प्रसार किया है, अच्छे ख्यालात जाहिर किए हैं। कल ही आपने अखबारों में देखा होगा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के एका और मेल जोल की बात की है। मुझे उससे खुशी है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ और देश भी चाहता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मेल रहे। आए दिन रोज झगड़े होते हैं, सरहदों पे गोलियां चलती हैं। ये न पाकिस्तान के लिए अच्छा है न हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। लाखों भाई अगर उधर से इधर आएं और हम इसे रोक न सकें तो ये हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। इसलिए मेल और समझौता, जैसा मैंने कहा, आदर और सम्मान के साथ एक दूसरे की बात को समझकर हम कोई रास्ता और उपाय निकालना चाहें तो उसे निकालना चाहिए। मुझे भरोसा है कि अगले कुछ महीनों में हम अपनी बातें कर सकेंगे और एक ऐसी भावना मेल जोल की पैदा कर सकेंगे जिससे एक रास्ता, ठीक रास्ता निकल आए। हमारे पड़ोस के हमारा प्रेम बर्मा से, लंका, सिलोन से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, ये सभी हमारे मित्र देश हैं। कुछ कठिनाइयाँ कभी कभी आ जाती हैं, कुछ सिलोन में भी हैं, बर्मा में भी हैं। मुझे खुशी है कि सिलोन के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ अक्टूबर के महीने में आना मंजूर किया है। हम अपने सिलोन और लंका का जो प्रश्न है हिंदुस्तानियों का,
उसे मुझे भरोसा है कि हम हल करने में कामयाब होंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह जी बर्मा जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ से भी वहाँ जो आज कठिनाइयाँ और दिक्कतें हैं उनको भी हम हल करने में कामयाब होंगे। एक दुनिया में शांति का रास्ता जवाहरलाल जी ने दिखलाया और आज भी हमें दुनिया में शांति कायम रखने में हम जितनी अपनी ताकत है लगाएंगे। हमारी नीति हम किसी बड़ी शक्ति के साथ नहीं रहना चाहते। हम फौजी तरीके पर बड़े बड़े मुल्कों का मुकाबला न करें, लेकिन एक अपने दिलों में हम अपनी एक आज़ाद एक अलग जगह रखना चाहते हैं। हमारी चाहे वो नीति नॉन अलाइनमेंट की हो, चाहे कोएग्जिस्टेंस की हो, चाहे डिसआर्मामेंट की हो, चाहे एंटी कॉलोनियलिज्म की हो या एंटी रेशलिज्म की हो। हम उपनिवेश नहीं चाहते। हम पोर्चुगाल की कॉलोनीज को मिटाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो कायम रहें। हम काले और गोरे के रंग और भेद को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो या कहीं और हो। हम उस नीति पर अड़े रहेंगे, लेकिन कोई शान की बात नहीं। जो सच है सच्चाई का साथ देंगे, लेकिन एक बर्दाश्त के साथ, सहनशीलता के साथ। मैं आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दुनिया में भी हमारी कदर तभी होती है जब हम अपने देश में मजबूत हों, जब अपने देश में हमारी ताकत हो, जब हम देश से अपनी गरीबी को मिटा सकें, जब देश से बेरोजगारी को दूर कर सकें, तभी देश की ताकत बाहर की दुनिया पर भी पड़ती है। हमारा एका, हमारे अंदर मेल, ये जरूरी है। अगर हम सांप्रदायिक और कम्युनल झगड़ों में पड़ गए, अगर हम प्रदेशों के झगड़ों में पड़े, अगर हम भाषा और जुबान पर आपस में मतभेद रखने लगे, तो वो हमारी ताकत में बाधा डालेगा। और इसलिए आज सारे देश को एक होकर एक राष्ट्रीयता की भावना से कठिन सवाल आए। मैं नहीं कहता कि कोई विरोधी दल हमारा खंडन न करे, सरकार की आलोचना न करे, जरूर करे। सरकार की जितनी बुराई करना चाहे एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक लोकतंत्र के ढंग से करे, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा वक्त आता है, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें सारा देश, सारा राष्ट्र, सारी पार्टियां एक साथ खड़ी होती हैं और मुल्क के सवालों को हल करती हैं। खाने का सवाल कोई ऐसा सवाल नहीं है जिस पर आज पार्टी के बुनियाद पर हम उसको हल करने की कोशिश करें। लेकिन मैं छोड़ता हूँ अपने तमाम साथियों पर कि वो इस पर गौर करें और विचार करें। लेकिन इतना आपसे निवेदन है कि राष्ट्र की एका, देश की एका को बनाए रखकर अपना एक नया समाज बनाकर, एक अपने समाज में नई क्रांति और रेवोल्यूशन करके हमको अपने देश को मजबूत बनाना है, और वही दुनिया में हमें मजबूत बनाएगा। आखिर में ये खाना पीना पहनना सब जरूरी है, लेकिन देश बनते हैं केवल धन दौलत से नहीं। रुपया पैसा होते हुए भी देश पीछे रहते हैं दुनिया की नजरों में और अपनी नजरों में। बनता कैसे है देश? देश बनता है गांधी जैसे आदमी, जवाहरलाल जैसे आदमियों से, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तियों से। और ये क्या थी इनमें बात? एक चरित्र था, एक नैतिकता थी, एक कैरेक्टर था। और अगर आज
हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तो फिर ऐसे नौजवानों को जन्म लेना होगा जो कैरेक्टर और डिसिप्लिन को अपने सामने रखेंगे, ये आकाशवाणी अनुशासन को अपने सामने रखेंगे। और अगर आज डिसिप्लिन नेशन, एक जुड़ा हुआ नेशन और राष्ट्र अगर आगे बढ़ा और हमने ऐसे लड़के और लड़कियां अपने देश में हम पाए जो इस स्पिरिट और भावना के साथ देश को आगे ले जाएंगे, देश का मार्गदर्शन करेंगे, देश के नेता बनेंगे, तो हमारा जो हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, वो उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम दिखाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हमें अपनी कामयाबी और सफलता का पूरा भरोसा है। मैं इत्मीनान से कहता हूँ कि हम देश के काम को आगे बढ़ाएंगे, तेजी से बढ़ाएंगे, मजबूती से चलेंगे और अपने देश के प्रश्नों को हल कर भारत को दुनिया में एक ऊंचा से ऊंचा स्थान देंगे। बहुत धन्यवाद। आपको याद है कि पंडित जी का प्यारा नारा हमेशा वो यहाँ खड़े होकर उस नारे को लगाते थे। मेरी हिम्मत बहुत नहीं पड़ती, लेकिन वो उनकी देन थी और आज के दिन खास तौर पर हम उसे भुला नहीं सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 3 बार आप मेरे साथ उस नारे को लगाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। अब आप प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री से राष्ट्र के नाम हिंदी में संदेश सुनिए। साथियों, आज सवेरे 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये न समझिए कि पूरी शांति हो गई। हमें गंभीरता से विचार करना है कि इस समय क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है। जैसा आप जानते हैं, लड़ाई बंद करने में 15 घंटे की देर हुई, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए देर से राज़ी हुआ। गो कि पाकिस्तान ने बहुत देर से जवाब दिया, फिर भी हमें खुशी है कि आखिर वो लड़ाई बंद कर देने को तैयार हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि वे लड़ाई बंद करना चाहते थे। वास्तव में उनके लिए ये ज़रूरी था, मगर जैसी कि उनकी आदत है, वे आखिरी वक्त तक इनकार करने का दिखावा करना चाहते थे। सिक्योरिटी काउंसिल को ये बता देने के बाद भी कि उनको लड़ाई बंद करना मंजूर है, और लड़ाई बंद करने के थोड़े ही देर पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितना अनुचित और बेरहमी का काम किया। दिन दहाड़े अमृतसर की शहरी जनता पर बमबारी करना ऐसा काम है जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाएगी। उन्होंने जानबूझकर ये काम किया और लोगों के जान माल को गहरा नुकसान पहुंचाया। फिर खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की धमकी भी हमारे सामने है, और उनके विदेश मंत्री की तो है ही। इन दोनों ने आगे और भी भारी लड़ाई की बात की है। इस सब से पता चलता है कि पाकिस्तान की लड़ने की इच्छा ख्वाहिश अभी भी बनी है। हम तो चाहते हैं, और हमारी सदा ख्वाहिश रही है, कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहे, लेकिन हम असलियत की ओर से भी आंखें बंद नहीं कर सकते।
मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य पर, जो भारत का अटूट हिस्सा है, या हमारे किसी और इलाके पर फिर से हमला करता है तो हम उसका पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेंगे। इस बारे में कोई संदेह और शक नहीं रहना चाहिए। ये हमारी पक्की नीति है और इस पर दृढ़ता मजबूती के साथ अमल किया जाएगा। गो कि दोनों मुल्कों की हथियार बंद फौजों के बीच लड़ाई बंद हो गई है, फिर भी यूनाइटेड नेशंस और दूसरे सब लोग जो दुनिया में शांति चाहते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वे इससे जो गहरी लड़ाई है उसे भी बंद करें। ये लड़ाई एक मजहबी राज्य और एक गैर मजहबी या धर्मनिरपेक्ष राज्य की है। ये लड़ाई एक आज़ाद लोक राज्य फ्री डेमोक्रेसी का और एक नियंत्रित या ऊपर से चलाए जाने वाले लोक राज्य गाइडेड डेमोक्रेसी का है। ये लड़ाई कैसे ख़त्म हो? हमारी राय में इसका एक ही रास्ता है और वो है सब मुल्कों का शांति से अपने अपने रास्ते पर चलते हुए आपस में मिलकर रहना। भारत इस आदर्श को मानता है और सारी दुनिया में उसने इस आदर्श की हिमायत की है। चाहे मुल्कों के बीच कितने ही गहरे मतभेद हों, चाहे उनके राजनीतिक और आर्थिक ढांचों में कितना ही फ़र्क हो, चाहे उनके बीच कितनी ही बड़ी समस्याएं, कितने ही बड़े मसले हों, फिर भी वे शांति के साथ रह सकते हैं। हमने बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है और हम उनका भला चाहते हैं। इस लड़ाई में भी हमने यही कोशिश की कि पाकिस्तानी फ़ौजी मशीन पर वार किया जाए। हमने पाकिस्तान के शहरी लोगों पर बम नहीं गिराए, हमने लाहौर पर गोलाबारी नहीं की, पूर्वी बंगाल के हवाई हमलों का भी जवाब नहीं दिया, हमने कराची पर भी हमला नहीं किया। गो कि पाकिस्तान के ज़्यादातर हवाई जहाज़ वहीं से उड़कर हमारे मुल्क पर हमला करने आते थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक गैर फौजी हवाई जहाज़ पर हमला किया जिस पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर और उनकी पत्नी सफ़र कर रहे थे और इस जहाज़ का पीछा कर इसे नीचे मार गिराया। पाकिस्तान ने राजस्थान, गुजरात और पंजाब की निहत्थी नागरिक जनता पर भी बमबारी की। पहले से स्कीम बनाकर हमारे ऊपर भारी हमला करके हमको उसका जवाब देने पर मजबूर कर देने के बाद पाकिस्तान जानबूझकर ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। इससे ज़्यादा गलत बात और कोई हो नहीं सकती। पाकिस्तान को ख़त्म करने का कोई भी इरादा भारत के मन में नहीं है। दरअसल पाकिस्तान ही लगातार भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता आ रहा है। पाकिस्तान ने ही पिछले 17 सालों में 3 बार भारत पर हमला किया है। पाकिस्तान ही हमारी सेक्युलरिज्म को नष्ट करना चाहता है। पाकिस्तान ही हमारे देश की जनता में भेद डालने के लिए सांप्रदायिकता का डर खड़ा करता है। ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में 5 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वे मुल्क के बनाने में हाथ बटा रहे हैं। उन्होंने लड़ाई के मैदान में भी शान और हिम्मत से काम किया है और सबसे ऊंचे फौजी मर्तबे और इनाम पाए हैं। पाकिस्तान के इस इरादे को हम कभी कामयाब न होने देंगे कि वो हम में फूट पैदा करे। देश की सेनाओं ने बड़ा शानदार काम किया है। उन्होंने बड़ी बहादुरी और युद्ध कुशलता दिखाई है। हमारी फ़ौज और एयरफोर्स के बहादुरों ने बराबर मिलकर काम किया और हमारे अफसरों ने लड़ाई के मैदान में और हवाई लड़ाई में अपने सैनिकों का खुद नेतृत्व किया, उनकी रहबरी की। उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लड़ाई के मैदान से उनकी वीरता के कारनामों की खबरें आई हैं। सारा मुल्क उनके ऊपर नाज करता है और उनका दिल से कृतज्ञ है और एहसान मानता है। उनका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है और मुझे मालूम है
कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ख्याल है। मैं भारत की पुलिस के बहादुरों का भी जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्हें पाकिस्तानी हमलावरों और छाता सैनिकों की चुनौती का भी सामना करना पड़ा है। कई जगह उन्हें हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमलावरों का सामना करना पड़ा। इस काम में उनमें से अनेक को अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी से भारतीय पुलिस के इतिहास तारीख में एक शानदार अध्याय जोड़ा है। इस परीक्षा इम्तिहान की घड़ी में सरकार को सबसे बड़ी ताकत अपनी जनता की एकता से मिली है, जो एक साथ मिलकर देश के प्रति अपना फर्ज अदा करने के लिए आगे बढ़ी। भारत बहुत बड़ा देश है और इसकी आबादी भी विशाल है। हमारे देश में बहुत से संप्रदाय और फ़िरक़े हैं। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ज़ुबानें बोली जाती हैं। हमारे यहाँ हर एक आदमी को अपने धर्म और मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी है, मगर हम सब मिलकर एक मजबूत कौम है। इसका सबसे बड़ा सबूत इन नाजुक दिनों में देखने को मिला है। पंजाब इस मामले में बहुत आगे रहा है। पंजाब के लोगों ने बड़ी हिम्मत, डिसिप्लिन और संगठन से काम लिया है। उनका हौसला बहुत ऊंचा रहा है। सीमा के और इलाकों के लोगों ने भी हिम्मत और जवाबमर्दी से काम किया है। मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत से नागरिक इस बमबारी से हताहत हुए हैं। इन क्षेत्रों की जनता की कुर्बानियाँ और बलिदान बेकार नहीं जाएंगे। उन्होंने पूरे देश की तरफ से जवाब दिया है और सारे मुल्क की जनता उनका आभार मानती है। जो लोग आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं, उनके घर वालों के लिए मैं आदर के साथ अपनी हमदर्दी और शोक प्रकट करता हूँ। इन शहीदों के घर वालों का दुख हल्का करने के लिए सरकार जो कुछ कर सकती है करेगी। जैसा मैंने कल पार्लियामेंट में बताया, चीन की धमकी अब भी हमारे सामने है और आगे वे क्या करेंगे इसे वे ही जानते हैं। लेकिन हमको चाहे जिस ओर से भी खतरा आए, उसका शक्तिपूर्वक मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है। नागरिक रक्षा के लिए हमें पूरी और पक्की तैयारी करनी है। सिविल डिफेंस में जनता बहुत हाथ बटा सकती है और उसने काफ़ी हाथ बटाया भी है। हर रोज़ डिफेंस फंड में बहुत से लोग अपने आप दान दे रहे हैं। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं और दान देने वालों का बहुत आभार मानते हैं। आगे आने वाले दिनों में हमें अपनी नीतियों और योजनाओं पर व्यावहारिक दृष्टि से फिर से विचार करना होगा। हाल की घटनाओं से हमको अगर कोई सबक मिला है तो ये कि जहाँ तक हो सके हमें अपने ही ऊपर भरोसा करना होगा। आखिर में मुल्क की अपनी ताकत ही काम आती है और वही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। ये काम चंद लोगों के करने का नहीं है, यह आप सब भाई बहनों का काम है। हर एक को ये समझना है कि जिम्मेदारी का क्या अर्थ और क्या मानी है और हमें क्या करना है। हमारा आज लोकतंत्री समाज है और हमारे सब नागरिक अपने आप अनुशासन के साथ जो कुछ करेंगे उसी से इस समाज को ताकत मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे मुल्क के रहने वाले भाई शांति की जिम्मेदारी को भी उसी शानदार ढंग से निभाएंगे जिससे उन्होंने लड़ाई की जिम्मेदारी उठाई और हमले का सामना किया। उन सब मुल्कों का जिन्होंने हमारी बात समझी है और हमारे लिए सहानुभूति दिखाई है, मैं भारत की जनता की ओर से शुक्रगुजार हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। हमें इस बात पर ख़ास तौर से खुशी है कि जो देश खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं, उनको छोड़कर दुनिया के बाकी करीब करीब सभी मुल्कों ने इस बात को माना है कि भारत ने हमला नहीं किया बल्कि पाकिस्तान हमलावर था। भारत का शांति में अटूट भरोसा है।
ये हमारे लिए वसूल का सिद्धांत का सवाल है, स्वार्थ और खुदगर्जी का नहीं। लेकिन शांति से प्रेम रखने का मतलब ये नहीं है और न हो सकता है कि जब हमारे ऊपर हमला हो तब भी हम अपने बचाव के लिए हथियार न उठाएं। जब 5 अगस्त सन 65 को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया तो उसने कुछ बातों को सोचकर ये कार्रवाई की थी। पहले तो उसने ये सोचा था कि कश्मीर में किसी किस्म का विद्रोह या बगावत हो जाएगी। दूसरे उसने ये भी उम्मीद की थी कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिक या फिरके वाराना झगड़े फसाद होंगे। पाकिस्तान के मंसूबों को सबसे बड़ी चोट जम्मू कश्मीर राज्य के बहादुर बाशिंदों ने पहुंचाई। उन्होंने बड़ी एकता और जवामर्दी के साथ हमले के पहले धक्के का सामना किया। उन्होंने अपने राज्य की सरकार का, जिसके चीफ मिनिस्टर सादिक साहब हैं, पूरा साथ दिया। मुल्क की रक्षा करने वाले फौजों को भी अपनी पूरी मदद पहुंचाई। पाकिस्तान की दूसरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। पाकिस्तानी हमले से हमारे मुल्क की मजबूत भीतरी एकता और भी उभर कर ऊपर आई। हमें इसी भाव को, इसी जज्बे को बनाए रखना है। हमें अपनी कोशिशों में, अपने कामों में तनिक भी ढील नहीं आने देना है। हमें खबरदार और सावधान रहना है। जो भी संकट या खतरा अपने मुल्क पर आवे, उसमें हर स्त्री, पुरुष, मर्द, औरत और बच्चे को अपनी जान की बाजी लगाकर उसका मुकाबला करना है। जीत हमारी है और होकर रहेगी। जय हिंद।